नमस्ते, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और बोला। आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में और आप सब देख रहे हैं फीजी इन फोकस। मैं हूं आपकी होस्ट सेरा शर्मा। हम इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं फ्रॉम अनसीडेड टेरिटरीज ऑफ स्क्वामिश, गेटसी, सिल्वरटूथ एंड मस्कियम नेशंस। वेलकम फॉल। फॉल स्टार्ट ऑन September 22nd एंड अब आप लोग फील कर रहे हैं फॉल इज हियर। हम सब को फॉल बहुत पसंद करते हैं। इट्स नॉट टू हॉट, नॉट टू कोल्ड। अक्टूबर महीने में 2 लॉन्ग वीकेंड्स है। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन डे ऑन October 2nd और थैंक्सगिविंग लॉन्ग वीकेंड ऑन October 9th। और उसके साथ साथ है फीजी का इंडिपेंडेंस डे ऑन October 10th। वेयरिंग मास्क इज बैक। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो किसी सीनियर्स फैसिलिटी में किसी को विजिट करते हैं, वहाँ पर मास्क पहनने के लिए मैंडेटरी है। Another booster is coming very soon. With that, you should also have flu shots. Talk to your doctor about getting flu shots. Flu shots will protect you from all different types of variants and viruses. The World Health Organization declared that October 1st is World Seniors Day. There will be 1.4 billion seniors in the next 10 years around the world. Then 1 in 3 will be seniors. Seniors are anyone over the age of 60. So take care of our seniors. We are all aging. Happy Thanksgiving from our family to yours. Be kind, be grateful, and kindness and humbleness beats all odds. Let's take a short break and we'll be right back after a few words from our sponsors. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. For any kind of visa-related services, contact Milky Way Immigration, a galaxy of opportunities located at Unit 209-9547 152 Street, Surrey, BC. They have licensed immigration consultants, placement officers, and LMIA experts to meet your immigration and recruitment needs. Book one-time free consultation either on Facebook or by calling 604-396-0005. Bollywood Banquet Hall and Conference Center located at Pile Business Center at 201-8166 128th Street in Surrey. No celebration is too small to accommodate you. They have newly renovated 2 halls to serve you, up to 1,000 guest capacity, top-notch chefs to delight you with delectable and heavenly cuisine. So just call Bollywood Banquet Hall at 604-598-2700 for your events. For all your party rental needs, a Langley Party Rental is open under the new management. The location is Unit 230-19358 6th Street in Langley. No job is too small or too big for your special occasions. So give them a call at 604-530-9155 or email info@langleypartyrentals1@outlook.com. United Pallets and Crates is located at 11585 134th Street in Surrey, BC. Give Sam Dooler a call at 604-760-2028 or call the office number at 604-634-2001. You can also visit the website, which is www.unitedpalletsandcrates.com, or send us email at info@palletsandcrates.com. Thank you sponsors for your support. अब हमारे साथ पूरे हफ्ते भर के फीजी का न्यूज़ लेकर आ गए हैं विक प्रसाद जी। नमस्कार, फीजी न्यूज़ के साथ मैं हूं विक प्रसाद। ये कार्यक्रम वैंकूवर कनाडा से प्रसारित हो रहा है। फीजी न्यूज़ के साथ मैं हूं विक प्रसाद। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वोरेंगे बाइनीमरमा ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोप से इनकार किया है और कहा है कि उन्होंने कभी भी सस्पेंडेड पुलिस कमिश्नर सिथिवेलिंग गिलियो को इन्वेस्टिगेशन रोकने के लिए नहीं कहा था। गुरुवार सुबह वो अपने पक्ष रखते हुए बाइनीमरमा का कहना है कि उन्होंने यूएसपी के बारे में किसी भी जांच के बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन बाद में उन्हें इसके बारे में पता चला था। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने टुक्स को उस जांच से दूर रहने का सुझाव दिया था, तो बाइनीमरमा का कहना है कि उन्होंने उस विषय में कुछ कहा था और यह एक चर्चा का हिस्सा था। उनका कहना है कि यह जुलाई में नहीं बल्कि जून 2020 में हुआ था, जब उन्होंने और गिलियो ने कोविड-19 के चरम पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हेडक्वार्टर्स में एक संक्षिप्त कार्यक्रम में भाग लिया था। बाइनीमरमा का कहना है कि उस समय जगह जगह पर कोविड प्रोटोकॉल्स लागू था। तब उनके वकील देवेश शर्मा ने सवाल किया कि उन्होंने यह सुझाव क्यों दिया था, तो बाइनीमरमा का कहना है कि उन्होंने सुना था कि यूएसपी में एक प्रोटेस्ट हुआ था और उन्होंने गिलियो से पूछा कि उन्हें 1 घंटा और एक छात्र विरोध के बारे में किसने बताया था।
बाइनीमरामा का कहना है कि उन्होंने गिलियो को सुझाव दिया था कि वह पुलिस को जांच करने दे क्योंकि उनका प्लेट भर चुका है। उनका कहना है कि उन्होंने गिलियोस को बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करते और पुलिस की जांच करने का सुझाव दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री को ब्रीच ऑफ कोविड-19 रेस्ट्रिक्शन के उल्लंघन की जांच करने के लिए पुलिस न्यूज़ आर्टिकल दिखाया गया था। बाइनीमरामा का कहना है कि वह इसी जांच के बारे में बात कर रहे थे। वो आगे कहते हैं कि उन्होंने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के बारे में कभी नहीं सुना और जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें यूएसपी के बारे में कोई जानकारी मिली थी तो बाइनीमरामा का कहना है कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था और मान लिया कि पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी थी। जब 17 सितंबर 2020 को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक के बारे में सवाल किया गया तब एक्टिंग कमिश्नर ऑफ पुलिस उरिस्याते टुंड्रावू ने कहा था कि वह यूएसपी के बारे में पूछना चाहते हैं और वह क्या सोच रहे हैं। तो बाइनीमरामा का कहना है कि उन्होंने मान लिया कि यूएसपी गाथा थी और जब उसके बारे में पूछा गया तो गिलियो ने बताया कि जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। उनका कहना है कि उन्होंने तब टुक्स को उसे जांच से दूर रहने का सुझाव दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री का कहना है कि वह यूएसपी फाइनेंशियल्स के बारे में किसी भी जांच के बारे में नहीं जानते थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो पोजीशन रखते हैं कि टुंड्रावू ने जो कहा वह सही नहीं था तो बाइनीमरामा ने कहा कि टुंड्रावू ने सोचा कि उन्होंने उन्हें जांच बंद करने के लिए कहा और वास्तविकता यह था कि उन्होंने कभी भी कोई जांच बंद करने के लिए नहीं कहा था। यदि टुंड्रावू ने ऐसा किया है तो वो जानते हैं कि बाइनीमरामा को पता है कि टुंड्रावू को यह पता है कि वो झूठ बोल रहा है। उनका कहना है कि एक कमिश्नर ऑफ पुलिस के लिए अदालत में आकर झूठ बोलना बहुत शर्मनाक बात है। पूर्व प्रधानमंत्री का कहना है कि गिलियो ने 2015 में सेना छोड़ दिया था और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस कमीशन के माध्यम से आए और पुलिस कमिश्नर बन गए थे। उनका कहना है कि वे दोनों संविधान के तहत काम करते हैं और दोनों अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के तहत देश की परवाह करते हैं और कहते हैं कि कमिश्नर प्रधानमंत्री को रिपोर्ट नहीं करता है। बाइनीमरामा का कहना है कि जो गिलियो को जानता है वो जानता है कि वो इंडिपेंडेंट और बहुत डिसिप्लिन्ड है। एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ डीपीपी रातू डेविड तोंगनीवालू को सवालों का जवाब देते हुए बाइनीमरामा का कहना है कि उन्हें गवर्नमेंट और यूएसपी के बीच किसी भी स्टैंड ऑफ की जानकारी नहीं थी। वो आगे कहते हैं कि उन्हें यूएसपी के किसी भी जांच के बारे में पता नहीं था और कहते हैं कि पुलिस के पास यह कंट्रोल था। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने सोचा था कि क्या वह यूएसपी वाइस चांसलर पॉल अहलुवालिया के एक रिपोर्ट का जिक्र कर रहा है तो बाइनीमरामा ने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं था। उनका कहना है कि उन्होंने गिलियो को कोविड-19 उल्लंघनों के बारे में जांच से दूर रहने के लिए कहा था। बाइनीमरामा का कहना है कि उन्हें नहीं पता है कि टुंड्रावू किस बारे में बात कर रहे थे और जाहिर तौर पर वे यूएसपी के संबंध में 2 जांचों के बारे में बात कर रहे थे। उनका कहना है कि यह उनकी नहीं बल्कि टुंड्रावू की गलतफहमी थी। जब उनसे सवाल किया गया तब बाइनीमरामा को बाद में यूएसपी से वीडियो रिपोर्ट के बारे में जांच के बारे में पता चला और क्या उन्हें जानकारी दी गई थी तो बाइनीमरामा ने कहा कि उन्हें कभी जानकारी नहीं दी गई थी। मुकदमा बाद में जारी रहेगा। बाइनीमरामा पर कोर्स ऑफ जस्टिस के विकृत करने के प्रयास के आरोप लगाया गया है और जबकि गिलियो पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि बाइनीमरामा ने जुलाई 2020 में किसी समय प्रधानमंत्री के रूप में पुलिस कमिश्नर को अपने कार्यालय के अधिकार का दुरुपयोग करने या एक पुलिस शिकायत की जांच रोकने का निर्देश दिया था जो यूएसपी के अधिकारियों के लिए एक मनमाना कार्य था जिसमें यूएसपी कंप्लेनेंट था। आरोप है कि गिलियो ने 15 जुलाई 2020 को पुलिस कमिश्नर के रूप में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सेरुपेपेली नेको और इंस्पेक्टर रश्मि दास को अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए यूएसपी द्वारा पुलिस शिकायत की जांच रोकने का निर्देश दिया गया था। बाइनीमरामा और गिलियो का प्रतिनिधित्व आर पटेल लोयस, दिवनेश शर्मा और गुल फतिमा द्वारा किया जा रहा है जबकि एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन राटू डेविड टोंगनीवालू स्टेट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नॉर्दर्न डिवीजन की पुलिस उस जोड़े की पोस्टमार्टम का इंतजार कर रही है जो सेंगांगा मधुआता में अपने घर के पास मृत पाए गए थे। सोमवार को दंपति मृत पाए गए थे। पुलिस का कहना है कि दंपति की मौत के कारण का पता लगाया जा रहा है और जांचकर्ता पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।
ग्रेस रोड फिजी के प्रेसिडेंट डेनियल किम का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने सरकार से आश्वासन मांगा है कि उन्हें मुवक्किल को तब तक देश से नहीं हटाया जाए जब तक कि लोटोका में हाई कोर्ट उनके जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन पर सुनवाई न कर ले। कानूनी कार्रवाई में मोड़ तब आई जब एक बचाव पक्ष के किम को साउथ कोरिया डिपोर्ट करने के बारे में चिंता जताई गई। जस्टिस अनारे तुइलेवुका के समक्ष पेश होकर किम को प्रतिनिधित्व कर रहे किंग्स काउंसिल साइमन ओवर ने गारंटी की आवश्यकता पर जोर दिया कि उनके मुवक्किल को साउथ कोरिया वापस भेजा जाए, जबकि राज्य ने उनके एप्लीकेशन को जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध किया है। मनाई वलोआ को सॉलिसिटर जनरल से सलाह लेने की अनुमति देने के लिए अदालत को दोपहर के लिए तक स्थगित कर दिया गया है। आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस। अब कुछ स्थानीय समाचार। सर्दियों के मौसम के लिए टेम्परेचर गिरना शुरू हो गया है, जिसके कुछ बीसी हाईवेज पर संभावित रूप से डेंजरस ड्राइविंग कंडीशंस पैदा हो जाती है। हाईवे पर विंटर टायर्स के लिए ऑफिशियल डेट है अक्टूबर 1। विंटर टायर्स की जगहों पर अनिवार्य है या कई जगहों पर अनिवार्य है, जैसे कोकाहाला हाईवे, हाईवे 97 और सी टू स्काई हाईवे। लीगल विंटर टायर्स में एटलीस्ट 3.5 mm थ्रेड होना चाहिए और साथ में M या S लिखा होना चाहिए। रेगुलर गैसोलीन का प्राइस पिछले थर्सडे से और बढ़ जाएगा। सितंबर में अधिकतर तौर पर गैस प्राइसेस $2.04 प्रति लीटर के करीब था, लेकिन इस बृहस्पतिवार से बढ़कर $2.15 प्रति लीटर हो जाएगा। पिछले बार प्राइस इंक्रीज लेट अगस्त में हुआ था समय के समय। आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस विक प्रसाद के संग। अब कुछ खेलकूद के जगत से जानकारी। कोर्ट्स आईडीसी अगले सप्ताह से HFC स्टेडियम सुवा में खेला जाएगा। पूल्स निकल चुका है और सुपर प्रीमियर डिवीजन में पूल ए में लोटोका, लंबासा, बा और तालेवु नितसिरी को रखा गया है। पूल बी में डिफेंडिंग चैंपियंस सुवा के साथ में रेवा, नांदी और सुवा को रखा गया है। प्रीमियर डिवीजन में पूल ए में तावुआ, सेंगांगा और राकी को रखा गया है। पूल बी में नसीनु, नानरोंगा और सावु को रखा गया है। उधर सीनियर डिवीजन में पूल ए में बुआ, नॉर्थलैंड, तालेवु और तव्यूनी को रखा गया है और पूल बी में लामी, नंदोंगो और ड्रिकेती को रखा गया है। रग्बी वर्ल्ड कप के अंतर्गत पूल प्लेज अभी भी जारी है। जापान और सामोआ के बीच में जो खेल हुआ उसमें जापान की जीत सामोआ से 28-22 से हुआ। न्यूजीलैंड ने इटली को 96 पॉइंट्स टू 17 से बुरी तरह से पराजित किया। अर्जेंटीना की जीत चिले से 59 पॉइंट्स टू 5 से हुआ। उधर फिजी ने जॉर्जिया को 71 पॉइंट्स टू 12 से पराजित किया। उधर 17 पॉइंट्स टू 12 से पराजित किया है। और स्कॉटलैंड की जीत रोमानिया से 84-0 से हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का भिड़ंत जो रविवार को खेल हुआ उसमें पोर्चुगल के साथ में हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की जीत पोर्चुगल से 34 पॉइंट्स टू 14 से हुआ। फिजी का अगला मैच पोर्चुगल से अक्टूबर 8 को होने जा रहा है। अगर हम पूल स्टैंडिंग्स की ओर देखते हैं तो पूल ए में फ्रांस के पास 13 पॉइंट्स है, न्यूजीलैंड के पास 10 पॉइंट्स है। पूल बी में आयरलैंड 14 पॉइंट्स को लेकर क्वालिफाई हो चुका है क्वार्टर फाइनल्स के लिए। साउथ अफ्रीका के पास अभी तक 10 पॉइंट्स है। और पूल सी में वेल्स के पास 14 पॉइंट्स है, वो भी क्वालिफाई हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया 11 पॉइंट्स पर है, फिजी 10 पॉइंट्स पर है और फिजी के पास अभी एक गेम बाकी है। पूल डी के अंतर्गत इंग्लैंड के पास 14 पॉइंट्स है और अर्जेंटीना के पास 9 पॉइंट्स है। इंग्लैंड भी क्वालिफाई हो चुका है क्वार्टर फाइनल्स के लिए। क्वार्टर फाइनल्स की जानकारी हम आपको अगले सप्ताह देंगे। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाजत। धन्यवाद। धन्यवाद विक प्रसाद जी। अगर आपके पास भी कोई न्यूज़ है और आप कोई न्यूज़ को शेयर करना चाहते हैं तो विक को कॉल कीजिए और हमारे स्टूडियो में भी कॉल कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं केविन चंद जी फ्रॉम फिजी कनाडा बिजनेस एसोसिएशन। वी आर डूइंग फिजी's 53rd इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। हैव अ लुक। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और बुला फिजी। जी हाँ दोस्तों, आप फिजी इन फोकस को देख रहे हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप बहुत फ़ोन करते हैं, एवरी वीक 5-6 फ़ोन तो हमें आता ही आता और कई बार तो मैं उठा भी नहीं सकती। तो बट यू आर जस्ट लेटिंग अस नो कि वी आर डूइंग अ गुड जॉब। This show doesn't belong to Camilla, doesn't belong to Kevin, it doesn't belong to anybody. This show belongs to you. क्या आप देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, it's all yours. Okay? So make sure, make the best out of it. और अगर आप जन्मदिन भी मना रहे हैं, एनिवर्सरी मना रहे हैं, किसी का मृत्यु भी हो गया, डेथ हो गया, this station is for you. उसी के साथ साथ में आज हमारी बातचीत आप देखेंगे, सुनेंगे केविन चंद के साथ में,
जो कि प्रेसिडेंट है फिजी कनाडा बिजनेस एसोसिएशन एंड ही इज़ द ओनर ऑफ एशिया वेकेशंस। आज हम उनसे बात करेंगे। फिजी का इंडिपेंडेंस डे होने जा रहा है। सो वेलकम केविन। थैंक यू कमला जी, थैंक यू फिजी इन फोकस, और थैंक यू जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, लिसनर्स है, घर से कहाँ से भी देख रहे हैं, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, बोला बिनाका एंड सत श्री अकाल। तो आज हम बातचीत करेंगे। हमारा इंडिपेंडेंस डे तो 10 तारीख को होता है नॉर्मली, बट 10 तारीख इस ट्यूसडे। ये साल हमने इंडिपेंडेंस डे करने जा रहे हैं 14 अक्टूबर को। जी हाँ, जैसे आप जानते हैं, और यस, इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन का जो फाउंडर है वो तो मेरे सामने बैठा हुआ है। सो थैंक यू कमिला जी कि आपने इंडिपेंडेंस यहाँ वैंकूवर में इंट्रोड्यूस किया। कितने 12-13 साल से आप कर रहे हैं, तो हम भी आपके साथ जुट गए। तो जैसे इस साल डोंट गिव मी द क्रेडिट, क्रेडिट गोज टू एवरीबॉडी। जितने हम फिजी के हैं यहाँ पर, इट डजंट मैटर हम कब से आए, कहाँ से आए, कितने दिन से आए। जो इंडिपेंडेंस होता केवन, अभी फिजी में तो खून खच्चर नहीं हुआ इंडिपेंडेंस के लिए। 1919 में इंडिपेंडेंस मिला था फिजी को, 1970 में सॉरी। लेकिन कई देश में ऐसा देखा जाए कि कितने लोग अपना जान भी गवा सकते हैं, गवा दिया है टू फाइट फॉर द फ्रीडम, to fight for the independence. But Fiji was one of the lucky countries that it came peaceful. We did not lose any life in 1970. जी हाँ, जैसे आपने बोला 1970 इंडिपेंडेंस हुआ, और फिजी में किसी तरह का ऐसा मेजर वायलेंस नहीं हुआ, किसी का खून खराब हुआ। कूच तो हुआ, 2-3 कूच हुआ, पॉलिटिकल कूच हुआ, उसमें ज़्यादा लोग को अफेक्ट नहीं हुआ, बट हुआ था। 87 कू में हुआ था, 2000 कू में हुआ था, बट किसी का मौत नहीं हुआ, एंड विच इज़ अ गुड थिंग। And Fiji is named the friendliest island in the South Pacific. और सो हम यहाँ पर रहते हैं कनाडा में। सो हम इस तरह से अपने जो रूट्स है उसको भूल नहीं सकते, और हम अपने बच्चों को ये रूट्स के लिए सिखाते भी हैं। तो हमारे बच्चे भी कहाँ स्कूल जाते हैं कहीं, वो भी प्राउड होते हैं कि हम फिजियंस हैं। जो वोट फिजियंस होता है, हम चाहे फिजी का हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या इतोकाई हो, जो वहाँ का भारतीय हो, जो नेटिव लोग हैं, सभी फिजियंस है। ये बात के लिए मैं, मेरे बच्चों भी यहाँ, जो दे वर बोर्न इन कनाडा, but still they are very proud to be coming from Fiji. My parents came from Fiji, and whenever they talk to the friends or the school teachers, they say I am Fijian, and they feel proud. So इसलिए जो इंडिपेंडेंस डे हम यहाँ पर कर रहे हैं हर साल, इसमें बच्चों भी इन्वॉल्व होते हैं, हमारे बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, सभी इन्वॉल्व होते हैं मिलकर। फिजी का इंडिपेंडेंस, फिजी से बाहर हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। सो इस साल फिर होने जा रहा है। जैसे आपने कहा, अक्टूबर 10 को 1970 में इंडिपेंडेंस हुआ, अक्टूबर 10 को होना है, बट हमारा जो वीकेंड पड़ता है वो है 14 अक्टूबर, जिसमें हम सेलिब्रेट करेंगे। ये होता है बॉलीवुड बैंक्वेट हॉल पर, जो पायल बिजनेस सेंटर पर है। और जो टिकट का प्राइस, मेरे पास भी कॉल आते हैं कमिला जी, कहते हैं टिकट का प्राइस बहुत महंगा है, $45 है। जितने भी जानते हैं लोग यहाँ पर रहते हैं नवोमैन में, आप जानते हैं कोई भी इवेंट कर रहे हैं आप, बच्चों का शादी हो, पार्टी हो, आप किसी भी हॉल से पूछ ले, आपको $50 से कम एक प्लेट नहीं मिलेगा। तो अभी एक्सपेंसेस सभी तरह ऊपर हो गया सभी तरफ। तो ये $45 जो सीधे हॉल के लिए जाता है, उसमें आता है हमारा जो फिजी का लैम्ब करी बनता है, 2 एपेटाइजर, 2 मेन डिश, ये सब होता है। अच्छी तरह फूड तो देना पड़ेगा, तो ये फूड को सीधा वहाँ जाता है। अगर आप आए, और बिजनेस लोगों को, जो भी बिजनेस लोग हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डोनेशन दीजिए सीधे फिक्स सीनियर हाउसिंग के नाम पर। जो डाइवर्सिटी विलेज है वो बन रहा है, वो इस साल कमिला जी आप जानते हैं कि स्टार्ट होने जा रहा है। जैसे उनका अभी तो 3 कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ रहे हैं, टेंडर में रखा है, तो दे 3 कॉन्ट्रैक्टर्स हैव कम फॉरवर्ड एंड वेरी सून सभी 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट और फ्रेजा हॉल तो उनको अप्रूव कर दिया, गो हेड, दे हैव गिवन द ग्रीन लाइट। सो जो लोग डाइवर्सिटी विलेज को कहते हैं कि हम कितना दिन से पैसा बटोर रहे हैं और डाइवर्सिटी विलेज बनता है ना बनता है, पिक्स को जाएगा। जो मनी हम रेज कर रहे हैं केवन, ये मे बी पिक्स इज अ ऑर्गेनाइजेशन दैट मैनेजेस डाइवर्सिटी विलेज, और वैसे वो मैनेज करते हैं वुमेन शेल्टर एंड दे मैनेज द सीनियर्स हाउसिंग। लेकिन जो हम पैसा दे रहे हैं पिक्स को नहीं दे रहे, हम डाइवर्सिटी विलेज
को दे रहे हैं, जहाँ पर हम जब बूढ़े होंगे, हमारे पेरेंट्स बूढ़े होंगे, वहाँ पर उनको रहने के लिए जगह होगा। आपको पता है केविन, हम सभी अपने पेरेंट्स को घर में नहीं रख सकते हैं, देखभाल नहीं कर सकते हैं, वो बेचारे अस्पताल में पड़े रहते हैं, और आपको पता है अस्पताल का क्या हालत है। तो ऐसे अगर डाइवर्सिटी विलेज 3-4 साल में तैयार हो गया तो हम अपने पेरेंट्स को वहाँ पर रखेंगे। 24 आवर डॉक्टर्स है, 24 आवर्स केयर है, नर्सेस, डॉक्टर्स, फैमिली है, चिल्ड्रंस रूम, एंड एवरीथिंग गोना बी देयर सेपरेट। और फिर अगर आप अपना पूजा पाठ करना चाहते हैं, अपना खाना भी वहाँ पर खा सकते हैं। एवरीथिंग विल बी catered towards you, and that's why we both are advocating for a place for our seniors, right? डेफिनेटली कमला जी से कहा कि वहाँ पर सभी कुछ मिलेगा। जो अभी एग्जिस्टिंग पिक सीनियर्स हाउसिंग है, जो अब 120 या 75 पर है, 75 पर है, वहाँ पर भी जो हमारे डिपेंडेंट लिविंग रेट हैं, उनको हमारे फिजी जैसा खाना मिलता है, Yeah. इंडियन खाना मिलता है। तो जो भी सुनने वाले देख रहे हैं कि कोई अगर पिक्स में कोई रहता है, हम जानने वाले, उनसे भी सलाह करिए कि उनका जो वहाँ पर सत्संग होता है, वो एज ग्रुप पर वो अपने दोस्त चाहते हैं Yeah. कि उनसे 2-4 बात करें। तो ये एक हम अपने पेरेंट्स को घर में बांध कर रखते हैं, Yeah. पर यहाँ कुछ होता नहीं। फिजी में तो गांव में घूमते थे, यहाँ पर कुछ खास होता नहीं है। Right. तो ये भी है कि हम एक प्रॉब्ली 2 महीने बाद हम एक प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। जो सुनने वाले आपका पेरेंट्स घर पर है, जो रिटायर्ड है, उनको महीने में एक बार आप लाकर पिक्स में छोड़िए, और उसमें हम क्या करेंगे कि उनमें उनको दिन भर का उनका खाना पानी कोई भी बिजनेस स्पॉन्सर कर देगा। Yeah. उसमें आप अपने उनको अवेयरनेस मिलेगा, उनका प्रोग्राम्स होगा, उनके सत्संगत होगा। और जो हमारे फिजियन लोग हम कंट्रीब्यूट करते हैं लास्ट Yeah. 7 ईयर्स से, वो हमारा पोर्शन बहुत लिटिल है Yeah. कंपेयर टू जो अपने पंजाबी भाई बहन हैं, इंडिया वाले देते हैं, हैं, yeah. उनका जो है वो तो अपने स्काई इज द लिमिट, उतना डोनेट करते हैं। हम बहुत लिमिटेड करते हैं। तो मैं सभी से यही गुजारिश करूंगा कि आप अक्टूबर 14 को ज़रूर आइए, सपोर्ट करिए, सिर्फ टिकट लीजिए, और इवेंट में हौसला बढ़ाइए कि हम ये सब मिलकर, फिजी वाले कहीं भी रहे लोअर मेनलैंड में, कि हम मिलकर सकते हैं कि फिजी का इंडिपेंडेंस बाहर देश में मनाएं। Yeah. तो और उसके लिए आप कहीं पर जाए, हमारे कोई भी डायरेक्टर्स को आई थिंक टिकट आप बाद में भी छोड़ सकते हैं, नंबर्स Yeah, छोड़ सकते yeah. हैं। ऐशा वेकेशन को Yeah. आपके पास और रेडियो फिजी मिर्ची के पास, आरजे खुशी के पास, Yeah. जितने भी फिजियन मीडिया Media है, है, yeah. सभी सपोर्ट करते हैं इस कोर्स के लिए। Yeah. तो यही मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी डायरेक्टर्स को, हमको, किसी भी फिजियन मीडियास को इन लोअर मेनलैंड, उनको कांटेक्ट करिए फॉर टिकट्स। प्लीज डू जॉइन अस। Yeah. और जो $45 जैसे केविन ने कहा, $45 जस्ट पेइंग फॉर द फूड, उसमें से 1 सेंट भी नहीं डाइवर्सिटी विलेज के लिए जाएगा। लेकिन अगर आप $100, $500, $5,000 का भी चेक लिखना चाहते हैं पिक्स के नाम पे, राइट इट टू पिक्स। इज नॉट गोना गो टू केविन, इज नॉट गोना कम टू कमिला, एंड यू विल गेट अ रिसीट, अ Tax paper. taxable receipt that you can claim at the end of the year. 55% of the people that live in the seniors housing belong from the Fijian community, and another 60% are on the waiting list. So this way, अगर हम donate करें long term care के लिए, diversity village के लिए, we can proudly say कि I have contributed. Please be with us and support this project. जी, आप लिसनर्स देख रहे हैं कहीं से भी, आपने डोनेट किया। अभी जो हम इवेंट कर रहे हैं, मेरे पास एक टैक्स आया ऑकलैंड न्यूजीलैंड से। हमारा भाई है बॉब जतन, उनका ससुर जी रहते हैं आनंद कुबेर, जो न्यूजीलैंड में रहता है। उसने देखा मेरे तरफ से समधी भाई लगता है कि समधी भाई मैं $100 दे रहा हूँ आपके सीनियर हाउसिंग के लिए। देख लो। सो लोग कहीं से भी डोनेट कर सकते हैं। Yeah. ये मैं नहीं चाहता हूँ कि आप $100, $200 कुछ भी हो, $10 हो, $5 हो, कभी कुछ भी हो। तो ये सीनियर हाउसिंग हम आपके लिए बना रहे हैं, आपके हेल्प के लिए, आपके फैमिलीज के लिए। सो ज़रूर आइए। तो मैं आखिरी में कमिला जी कहना Yeah, चाहता sure. हूँ कि अपने पेरेंट्स को, मैं बताऊँ, अपने पेरेंट्स को जब तक वो है उनकी सेवा करिए। Yeah. वो ऐसा चीज़ है जिसके पास नहीं है वही जानता है कि पेरेंट्स नहीं है तो क्या करता है। अभी मेरे पास तो पेरेंट्स नहीं है, छोटे था, मेरा फादर पास हो गया, 20 का पूछा मेरा मॉम चली गई। अभी मैं इतना बूढ़ा भी हो गया, 50 पास कर दिया, अभी भी मैं अपने पेरेंट्स को मिस कर रहा हूँ। क्रेव कर रहे कि मैच में भी हमारे मेरे- साथ में होता 2 बात करते हैं, बीवी से तो बात कर सकते हैं, बट ऐसा को बात हो कि हम पेरेंट्स से भी बात करें। Yeah. तो यू गाइज आर लकी जिसके पास पेरेंट्स है। प्लीज डू ट्रीट देम राइट एंड स्पेंड टाइम विद देम। दे डोंट नीड नथिंग फ्रॉम यू, द ओनली थिंग दे नीड फ्रॉम यू इज द लव। सो प्लीज गिव लव टू योर पेरेंट्स।
थैंक यू। बहुत अच्छा आपने बोला। और फिर उस दिन जब आप आएंगे तो पिक्स वाले भी वहाँ पर रहेंगे और उनका भी अपना प्रोजेक्ट भी दिखाएंगे। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन पिक्स वालों से, आप बातचीत भी कर सकते हैं, देखना कि किस तरह का बिल्डिंग बन रहा है एंड ऑल दैट। सो आई एज ऑल ऑफ यू, गेट द टिकट। Don't buy it from me, don't buy it from Kevin, buy it from any directors. But please do buy and come and support the project. Thank you. Date to remember, October 14th, Bollywood Banquet Hall. Tickets, any Fijian media has it. So, thank you. See you all. Thank you, Kevin. धन्यवाद केविन जी। अगर आपको टिकट्स चाहिए तो गिव केविन अ कॉल एट 604-562-4569। हमारे पास कुछ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स है, लीजिए देखिए। प्लीज हैव योर पेन एंड पेपर रेडी टू मेक नोट्स। 53rd Independence Day of Fiji will be celebrated on October 14 at Bollywood Banquet Hall in Surrey at 6 p.m. We are looking for sponsorship for 3 categories of sponsorship: Platinum, Gold, and Silver. For more information, please call Kevin Chun 604-562-4569, Camila Singh at 604-537-5123. Call me, Sarah Sharma, at 604-992-7253. Agnes Prasad 604-771-7499 or Salesh Prasad 604-897-6601. The proceeds from this event will go to Guru Nanak Diversity Village. Fijian Focus brings 3 other shows आपके लिए. Asian Pulse TV on every Wednesdays at 1:30 p.m., Thursdays at 8:30 p.m. and Saturday at 5:30 p.m. Camila Singh Talk Show on every Mondays at 10 a.m. and Sundays at 5:30 p.m. Bula Beats TV on Thursdays at 10 p.m. and Sundays at 4:30 p.m. Please watch all our shows. अब हमारी मुलाकात होगी next week on Tuesday at 10 p.m. only on Shaw. हम आप सभी से शुक्रिया अदा करते हैं for spending valuable time with us. Please watch all our shows and like and share on YouTube. I'm your host, Sarah Sharma. धन्यवाद.